A very good afternoon, everyone. We will now commence today's technical session, and it is a great pleasure to have Dr. Amol Ranjan Singh as the first speaker for the workshop. He will be delivering the talk on the topic Research Trends in the Field of Mental Health. I now request Dr. Rosalina Singh to welcome Amol Ranjan Singh, and I would also urge Kumari Ruby, our rapporteur, to be prepared for the briefing. Good afternoon, everyone. Uh, Now we are going to start our first technical session, and it's my great privilege and honor to call Mr. Dr. Professor Amol Ranjan sir for our inaugural lecture. Uh, we all, as know, sir is the most respected and highly well-known face in the field of clinical psychology. Currently, sir is working as a director and head of the department clinical psychology रिनपास at रांची. और मैं सर को उस दिनों से जानती हूँ जब मैं पहली बार रांची में आई थी और मैंने साइकोलॉजी के फील्ड में काम करना शुरू किया था. सर के बारे में कहना मेरे लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रिविलेज और ऑनर की बात है. जैसे हम सभी जानते हैं सर साइकोलॉजी के अंदर मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस फेस हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में. Currently, sir is serving as a director and head of the department clinical psychology रिनपास रांची. इतना ही नहीं, सर ने बिम्हांस न्यू दिल्ली, गुजरात यूनिवर्सिटी और नागालैंड यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंट कैपेसिटी के साथ इन्होंने काम किया है. और सर ने कई सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जो भारत सरकार के अंडर में फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में प्रोजेक्ट शुरू हुए जिसमें सर ने उनका काम किया. सर ने कोलैबोरेशन के साथ उस पर काम किया. और सर का टीचिंग और रिसर्च के फील्ड में 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है. इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है जब मैं सर को अपने फर्स्ट इनॉग्रल लेक्चर के लिए सर को बुला रही हूँ. और सर प्लीज कम ऑन स्टेज. यू आर ऑलरेडी इन द स्टेज एंड टेक द स्टेज एंड please speak your lecture and enlighten us with your lecture. Thank you, sir. The topic of the sir is trends in field of mental health. Thank you, sir. Please come. Respected Dean, Professor MP Hassan sir, Dr. Jeba ma'am, Dr. Rita ma'am, Dr. Renu madam, all the faculty members of the department, and most importantly, all the participants who are mostly the students of the Department of Psychology or some other places also they might have come. So, very good afternoon and Johar. And I am really delighted that I have been given the opportunity to be part of today's deliberation, which is going to last for 2 days, in fact. And the topic which has been given to me is I think this is the theme actually, research trends in the field of mental health. So that is very important topic, and as Dr. Rosalina ma'am was telling that I am representing one of the largest mental hospitals of the country, so which houses more than 678 patients. For today's statistics, if I tell you, today we were having 678 patients in the morning when I came to the office, and our OPD is around 500 a day. So we cater more than 1 lakh patients in a year in our institute, and our focus is on the clinical services. Besides that, we also run MPhil and PhD program in clinical psychology as well as in psychiatric social work. Then we do have post-graduation in psychiatry as well. So today's topic is very interesting, and especially for me to discuss with you, my purpose is simple, just to help you realize that how much work can we do in the field of mental health, because we all are from psychology fraternity and we have to be sensitized to the extent that we are able to decide about our future course of action as a student. You are lucky that you are in the Department of Psychology, Ranchi University, Ranchi. This is one of the most prestigious department in our country, and it has got a very long and prestigious history also. So I'm just coming to my topic and I will be very precise that way, in the sense that
what all objectives do we have? Because this is a workshop. Technically speaking, workshop focuses on the two-way deliberations. We will focus on a specific topic. The topic will be discussed and your participation will equally be appreciated also. So what are the major learning objectives of this particular session? Understand major research trends in mental health, first of all. What are the major research trends? Because in last 2 decades, lots of things have changed substantially, I tell you. Each one of you are aware about what all technological advances have taken place and that is resulting in our day-to-day research activities besides the clinical work what we do. Learn methods and tools used in research. What are the tools we use nowadays? What are the best practices available in the area of mental health? No challenges in mental health research. Yes, we come across different type of challenges when we are dealing with our individuals with mental health issues and especially when we go to the community for conducting any research. Identify important books and articles. That is another important part because in our institute, I tell you that we subscribe more than 70 international journals and more than 1,000 journals. One nation, one subscription recently we have subscribed besides plenty of books in the area of mental health. So that is also important and that is a sort of resource center, both our institute as well as CIP. So technology is advancing fast. This is the main reason I just wanted to discuss because you must have read research methods, you must have been familiar with different designs, but still what is relevant in mental health, I will just focus on that part. So technology is going to play an important role that is already playing. Large long-term studies provided strong data. That is another important thing. Most of the studies which have been carried out in the last 20 years, if you see, those have been retrospective studies, prevalence studies, incidence studies, right? And that gives us sufficient insight about what best can we think of developing, whether this is a psychological tool or intervention methods. Countries collaborate more on mental health. Nowadays, there is a trend that we have started collaborating not only on the national level and rather with international levels. We had collaboration with the Melbourne University, RINPAS, that I did was more than a decade back, and that was one of the best projects, I tell you, in terms of community mental health program, and that is being practiced in many countries thereafter. Researchers now focus on symptoms dimension rather than labels. That is another important thing. Every time we talk about, say, DSM, for example, right, or ICT, the days are gone actually. Nowadays, we have started focusing more on symptoms. What are problems people are coming up with? That is more significant and important because once you label a given individual, suppose you tell that I am a case of OCD, I am a case of schizophrenia, that very day I am labeled forever, lifetime. And that becomes a sort of a stigma, I tell you. So nowadays there is a trend world over that people have started talking in terms of what all behaviors do we have, what all symptoms presentations are there, so that if we are able to rectify or help people to overcome those problems, at least we will think that the individual had reached to the pre-morbid level, I mean he has become normal, right? Otherwise, if I am a case of schizophrenia, even if I have been under treatment for years, I will always be considered as a case of schizophrenia. ये तो schizophrenic है, he will require long-term medication, इनमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ चीजें होती हैं, हमको उसी पर्सपेक्टिव से देखेगा इंसान, और समाज में ये चीज चल रही है, इसीलिए स्टिग्मा बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ में. तो ये जो एक रिसर्च मेथड्स का हम लोग ट्रेंड की बात कर रहे हैं, चीजों में बदलाव आ रहा है, उसको हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. सो व्हाट आर द मेजर ट्रेंड्स? आप लोग यंगस्टर्स बैठे हुए हम देख रहे हैं सब लोग, है ना, डिजिटल मेंटल हेल्थ आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है. तो पूरा तो डिजिटल जनरेशन, टच स्क्रीन जनरेशन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, है ना. कोई भी चीज कर लो, दुनिया मुट्ठी वाला स्टोरी है, हर चीज आपके हाथ में है. टच स्क्रीन, बस टच किया और रिजल्ट चाहिए तुरंत,
है ना? तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे इश्यूज भी हैं जो इसके साथ आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर एरियाज वेयर वी आर ट्राइंग टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ tools or methods to reach to the people to address what all mental health issues people are reporting to us. Precision psychiatry. Nowadays, this is very advanced stage where science has progressed very fast. Each one of us are trying to focus on the specific diagnosis of any case. So that is basically precision psychiatry. I will come to these points again. New diagnostic framework. It is not only DSM actually, it is not only ICT. There are different methods of classifying the people. You must have read in abnormal psychology or in the book of clinical psychology even. Global mental health. Nowadays we do not talk in terms of only mental health problems, right? Sustaining global development, for example, SGT. If you look that particular component in the world over, it means that in absence of good mental health, we cannot contribute in development of our country or in the world. And that is very significant. That motivates us. That helps us to realize that yes, we are very much integral part of overall development of a country or society. So unless we are keeping good health, at least nobody should think in terms of doing something great to the society. It is impossible, I tell you. And their psychology comes to play important role actually. AI. Nowadays everybody is using AI. People are writing books, articles. Okay. Lots of abuse of AI is happening. This is also the reality. आपको कोई लेक्चर देना है एआई से बना लीजिए, किताब लिखना है एआई से बन जाएगा, आर्टिकल लिखना है एआई से बना दीजिए, ठीक है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं. We are compromising with our own asset, that is basically the cognitive asset. अगर हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल ही कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो आप समझिए कि आप कहां पर पहुंचने वाले हैं. इसका रिपरकशन 20 साल बाद समझ में आएगा. आज से 20 साल पहले यहां पर कुछ सीनियर टीचर्स बैठे हुए हैं. You must be remembering that we are able to remember 25, 34 numbers very easily. And I am telling you today that how many of us genuinely remember more than 3 or 4 numbers. So this is the type of deterioration which has taken place. And that is only making us such that we are not applying our mind actually. There is very limited use of brain. Nowadays children, students don't want to open the book. They don't want hard copies. Why? Q learning, everybody knows, we all are from psychology. In absence of a proper book, what sort of learning do you expect that will happen? How much knowledge are you going to say assimilate and then retrieve at the time when you genuinely need it? So that is the point. You have to ponder about it also. Youth prevention. There are so many issues associated with youths. And they are coming, for example, substance abuse, technology addiction. These are the burning issues. Most of the parents, when you come across or you talk to them, everybody is talking about the same thing without realizing that we as a guardian or parents are equally involved with the technology. Are we not addicted to technology? Tell me honestly. But there must be some guideline, some limitations, so that we are able to do justice not only with ourselves but with our family members also. Equity issues. I am coming to that. Socio-demographic correlates we always talk about in terms of mental illness, mental health issues, and there is lots of discrepancy in terms of its the manifestation of mental health issues also. So, and then psychotherapy research. Ultimately, the intervention matters most. And what all patients we come across, if they come with certain problems, we listen, give them time, try to formulate what best can be done for a given case. And if we succeed in helping that individual, only then what all model do we talk about that is relevant to be talked to. So digital mental health includes online therapy, apps, virtual reality therapy, computerized CBT and chatbots. Nowadays, this is a method in our institute also. We have just completed our 100 years and Dr. Hassan sir was there
your HOD and Dean in that function, and our Chief Minister inaugurated that center, Digital Mental Health Center, where we are providing 24-hour services. What all complaints people want to talk about, they come to us, they talk to us, and subsequently we arrange sessions virtually also if required. Even you can do it from anywhere. They help reduce symptoms, but engagement is a problem. That is more important actually. What happens, जब आप किसी से बातचीत करते हो पहली बार, तो जब भी किसी से बात करोगे उसको बड़ा अच्छा लगता है. तो they have a feeling that there is change. लेकिन क्या actually can we genuinely validate those things? And if at all we are planning to do that, what are the methods left? Digital mental health gaps needed better real world evidence, equal access, strategies to keep users. How many of us can have virtual reality therapy sessions? अभी तो आप देखिएगा इंटरनेट के इश्यूज, कहीं पर हम ही को लोग फोन करते हैं. हमारे इंस्टीट्यूट में जब हम अंदर बैठ जाते हैं ऑफिस में तो बात नहीं हो पाती ठीक से. हमारे जो क्लाइंट हैं जब उनसे हम लोग सोचते हैं कि लेट अस हैव ए सेशन, समटाइम देयर इज डिसरप्शन, समटाइम वी आर नॉट एबल टू गो टू एनी प्रोग्राम. तो ये होता है कि नहीं वर्चुअल कर दीजिए, तो थोड़ा डिसरप्शन होता है. और जब थेरेपी हम करते हैं तब ये डिसरप्शन ज्यादा एपरेंट हो जाता है. ये हमेशा याद रखना है. तो जो हम लोग प्लान करते हैं जो रिसर्चर, कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो कि वर्चुअल रियलिटी थेरेपी में हमको काम करना है, देन यू हैव टू बी केयरफुल दैट व्हाट मॉडल. क्योंकि हम ये जितने भी रिसर्च डिजाइन उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं. कोई रिसर्च डिजाइन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, याद रखिएगा. हम हमेशा बोलते हैं आप अपना रिसर्च डिजाइन डेवलप करो. आपको जो लगता है दिस इज फुल प्रूफ, दैट इज द बेस्ट. जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, टाइम हैज गॉन. अगर हम उसको पकड़ के चलेंगे तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस के साथ चलेंगे. लेकिन एज ए क्लिनिशियन, एज ए रिसर्चर, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, डोंट बी हेजिटेंट डूइंग इट. ये जो हम लोगों का वर्कशॉप है इसीलिए हो रहा है, सेंसिटाइजेशन के लिए. बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन आप एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर जब आप प्लान करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को अपने लेवल से मॉडिफाई कर सकते हैं. दुनिया में कहीं पर नहीं लिखा है कि इस रिसर्च डिजाइन को ही फॉलो किया जाए. ये आपका अपना सिलेक्शन होना चाहिए विथ प्रॉपर रीजनिंग एंड लॉजिक. सिंपल. यूज जेनेटिक्स, प्रिसीजन साइकेट्री. आजकल होता ना कि बिल्कुल हर चीज बायोलॉजिकल बेस्ड चीजें होती हैं. ठीक है, जेनेटिक पार्ट को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है. यस, दैट इज वेरी मच देयर. हर चीज को अगर हम उस लेवल से देखेंगे तो अभी भी डायग्नोसिस नहीं हो पाती. आई मस्ट टेल यू, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसका कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर ढूंढना शुरू करें, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट वन. सिंपल. तो प्रिसीजन साइकेट्री है, इसलिए एंटी साइकेट्री मूवमेंट भी है पूरी दुनिया में. अगर आप लोग लिटरेचर सर्च करेंगे तो एंटी साइकेट्री मूवमेंट भी 50 साल से चल रहा है. लोगों को बोलना है कि लोग कोई काम नहीं है क्या जो हम लोग काम करते हैं. ये लोग तो जिसको देखता है उसे को मरीज बना देता है. आप हमारे पास सामान्य बात के लिए भी जाएंगे तो देन लगता है कि शायद ये लोग ट्रीटमेंट, इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी को थोड़ा लोग सेग्रीगेटेड रखता है. हम लोगों के साथ बायस्ड होते हैं लोग, है ना. हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर किसी फंक्शन में मिल जाएंगे, सोशल गैदरिंग में, तो देयर आर पीपल हु विल अवॉइड मीटिंग अस. कि अगर इनसे बात करेंगे लोग सोचेंगे जरूर कुछ ना कुछ समस्या रही होगी, तभी इतने क्लोज कैसे बातचीत हो रही. तो ये स्टिग्मा होता है थोड़ा, इसीलिए मॉडल में बदलाव हो रहा. ब्रेन स्कैन ईजी बहुत हेल्प करता है. ठीक है, स्पेशली जब ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, समझिए बात को. स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ऑर्गेनिक पैथोलॉजी हुआ कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की वजह से साइकोसिस हुआ, दोनों में बहुत अंतर है. ठीक है, अगर स्किज़ोफ्रेनिया हमको 20 साल से है, हो सकता है पोस्टमार्टम के टाइम में पहले होता था कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस मिले. आजकल लोग सीटी स्कैन, पेटी स्कैन से कर लेते हैं. ठीक है, बट दैट नेवर गारंटीज कि कोई खास स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन की वजह से आप किसी को डायग्नोस कर दिए स्किज़ोफ्रेनिया. दैट नेवर हैपेंस, दैट इज नेवर वैलिड थिंग. ठीक है, क्योंकि उसका एसोसिएटेड फीचर होगा. हाँ, हेड इंजरी हो गया स्पेसिफिक पार्ट में, जैसे प्रोसीजरल लर्निंग या मेमोरी आप बोल लीजिए. ठीक है, या डिक्लेरेटिव मेमोरी बोल लीजिए, तो उसमें पता हिप्पोकैम्पल का क्या रोल है. ठीक है, लिम्बिक सिस्टम कहां पर है ना, क्या चीज पहले डैमेज होगा, दैट वी कैन प्रिडिक्ट. लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ये संभव नहीं है. ठीक है, ये बिल्कुल
पकड़ करके रखिए। हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स में इधर उधर होगा बदलाव, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग विच इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो जितनी भी प्रिसीजन साइकेट्री में बात है, दैट इज मोर टुवर्ड्स समथिंग टू डू विद द ऑर्गेनिक साइकेट्री, जहां पर यह माना जाता है कि इफ देयर इज सम ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द सम लीजन इन द ब्रेन, हेड इंजरी, है ना, एपिलेप्सी, लाइकवाइज, नॉट अदरवाइज। तो जब भी प्लान करिए रिसर्च का, तो इस जब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर किसी का हेड इंजरी पहले हुआ है ना, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस, तो हम लोग एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसीलिए रखते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं, है ना, तो स्किज़ोफ्रेनिया से भी डिटेरियोरेशन हो सकता है, और कुछ कुछ सिम्टम्स इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड में भी मिल सकती हैं, बट दे कैन नॉट बी इक्वेटेड लाइकवाइज। स्मॉल इफेक्ट्स, सबसे बड़ा लिमिटेशन हमारे साथ क्या है, मेंटल हेल्थ में बतला दें, हमको कोई हेजिटेशन नहीं होता है स्मॉल इफेक्ट्स का। जनरली वी गो फॉर द केस स्टडीज, दैट इज मोस्ट पर्टिनेंट एंड इंपॉर्टेंट मेथड। अगर हम एक ओसीडी मरीज को ठीक करते हैं, तो आप समझिए कि उसको अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं, बहुत सारे क्लिनिशियंस को हेल्प होता है। लेकिन अगर हम 10 ओसीडी ले लेते हैं, तो उसका मैच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम कितना भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से सबका सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस अलग होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होगा, फैमिली बैकग्राउंड अलग होगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक लिमिटेशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली वी आर देयर टू सर्व द पॉपुलेशन, वी आर देयर टू सर्व द इंडिविजुअल। हमारे पास कम्युनिटी नहीं आता हेल्प के लिए, इंडिविजुअल आता है, तो हम इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस करते हैं और वहीं से हम लर्न कर सकते हैं। पुअर रिप्लिकेशन, अब एक जैसे जनरल पॉपुलेशन होता, तो आप कोई भी टेस्ट जब एडमिनिस्टर करते हो तो उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं, कुछ दिन के बाद आप रिपीट कर दीजिए। अब हमारे जो मरीज हैं, उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस अगर आज है और उसके बाद हम ठीक कर दिए उसको कुछ लेवल तक, ठीक है, तो अगर आप वही टेस्ट करेंगे तो प्री एंड पोस्ट तो हम असेस कर लेंगे, लेकिन रिप्लिकेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की हम लोग बात करते हैं कि नहीं। तो जितने भी हम लोगों के टेस्ट रिटेस्ट हम लोग टूल्स डेवलप करते हैं, वो नॉर्मल कोर्स में जनरल पॉपुलेशन में किया जाता है, ठीक है। साइकेट्रिक पॉपुलेशन में करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गिव लॉट्स ऑफ गैप, बिकॉज अगर एंजाइटी का भी केस है, 2 महीने के बाद अगर आप उस पर करने जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें बदलाव हो गया, आइदर द पेशेंट हैज इंप्रूव्ड और देयर इज फर्दर डिटेरियोरेशन, सो देयर विल बी डिफरेंस। ये छोटे छोटे पॉइंट, इसीलिए हमने बोला रिसर्च डिजाइन पे मत जाइएगा, आप अपना रिसर्च डिजाइन सोचिए, व्हाट बेस्ट सूट्स टू योर रिसर्च। प्राइवेसी कंसर्न्स साइकेट्री में बहुत होता है हम लोगों में। हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने तो पढ़ाई है, सब लोगों ने काउंसलिंग, सबसे ज्यादा किसका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जब मरीज हमसे बातचीत करता है, तो उसके कॉन्फिडेंशियल को आप पब्लिक भी नहीं कर सकते, यानी कि वही एक इंडिविजुअल है जो हमारा अभी एक इंडिविजुअल है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना सकते हैं, उसी को सेम, है ना, और बाद में वही तो एक तरीके से क्या हो गया, वो कंट्रोल्ड भी वही है और एक्सपेरिमेंटल भी वही ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द चेंज विद इन द इंडिविजुअल, एंड दैट इज हाउ आवर स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एंड नीड फॉर लार्ज सैंपल्स, हमेशा हम लोग बात करते हैं, तो इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे कम्युनिटीज के व्यूज को लिया जाता है, ठीक है, वहां पर अगर आप बोलेंगे कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का ग्रुप थेरेपी, ठीक है, तो कितना मरीज हम लेंगे, 8-9 मरीज, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, बट दैट विल नेवर रिप्रेजेंट अ लार्जर ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस है, तो फिर वहां पर भी हम लोगों को थोड़ा कंट्रोल करके ही एक ग्रुप को फॉर्मेशन किया जाता है। डायमेंशनल मॉडल जो हम बोलना चाह रहे थे, आजकल ये जो रिसर्च डोमेन क्राइटेरिया है, हायरार्किकल टैक्सोनॉमी, जिसको साइकोपैथोलॉजी, स्टडी मेंटल हेल्थ थ्रू इमोशंस, थिंकिंग, मोटिवेशन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज रादर देन फिक्स्ड डायग्नोसिस। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जब भी जैसे इमोशनल रेगुलेशन की बात हम लोग करते हैं ना थेरेपी में, अरे दैट इज द की, जिसका इमोशन कंट्रोल आप कर सकें, रेगुलेट कर सकें, तो उसके बहुत सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वांटिंग टेंडेंसी है, गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो आप क्या करते हैं, कोई भी मेथड यूज करिए, लेकिन इमोशनल रेगुलेशन इज द की।
ठीक है, तो डायग्नोसिस पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हम हमेशा बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बेटा जो आज तुम डायग्नोसिस देख रहे हो इस केस का, 10 साल के बाद हो सकता है डायग्नोसिस बदल जाए। ठीक है, क्यों? हमारे पास जब आता है कि पुराने प्रिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं कि इसको ये बीमारी है, तो हम भी तो बायस्ड हो जाते हैं ना। तो अब पूरी दुनिया में ट्रेंड चल गया है कि नहीं, डायग्नोसिस बहुत रेयर केस में ही आप चलिए, उसकी जगह डायमेंशन पे चलिए, किसको परेशानी किस सिम्टम की है, क्या चीज है, मेन क्या चीज प्रभावित है। एक बार अगर आपने लेवल कर दिया, याद रखिएगा, इवन एंजाइटी, लोग सोचते हैं बहुत हल्की बीमारी है, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, आई टेल यू दैट इज एज गुड और एज बैड एज एनी अदर मेंटल इलनेस। एंजाइटी क्या कभी ठीक होता है क्या? आप बताइए, यहाँ पे इतने लोग, सर लोग बैठे हुए हैं, सब लोग विद्वान लोग, बच्चे लोग ज्यादा हम लोगों से आगे हैं ना, फास्ट सोचते हैं अरे ठीक है साइकोसिस नहीं है, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। दैट इज वेरी चैलेंजिंग। जिसका एक बार पड़ जाती है आदत एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, जनरलाइज जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कभी बिल्कुल कोई ठीक होता है क्या? संभव नहीं है, कुछ ना कुछ रहेगा जब तक कि आप उसको खुद नहीं ट्रेन कर दें, so that they are able to cope better. They can stand stress only when they are thoroughly trained about that. Otherwise, आज तो आपने ठीक कर दिया, आप देखेंगे 2 महीने के बाद दूसरा इशू लेकर के चले, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दो सिम्टम्स। तो ये जो हायरार्किकल सिस्टम था साइकोपैथोलॉजी, इसीलिए आजकल आप देखेंगे जितनी अच्छी बुक्स आ रही, नई बुक्स आ रही हैं, उसमें सिम्टम्स जो हैं वो अलग क्लासीफाई किया जा रहा है ग्रुप में। 3 सिम्टम होते ही मान करके चलिए। जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया है, जिसको देखिए, जिस गार्जियन को देखिए, हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है क्या, हमने कह रही कहाँ से पढ़ लियो भाई, है ये सब जो रोज रोज इधर उधर चीजें आती हैं, उसको उस पर मत जाइए। हर बच्चे का एक अपनी दुनिया है। गार्जियन आते हैं, हमारा बच्चा जो है वो 9th 10th का है, बहुत शरारत करता है, हमने कहा कि 9th 10th 11th 12th याद रखिए, हमारी बेटी भी यहां पर बैठी, हमको कोई हेजिटेशन है, अगर इन बच्चों का स्कूल से शिकायत नहीं आया तो आज समझिए कुछ गड़बड़ है बच्चे में। यू गॉट माई पॉइंट है? अरे बचपन में बचपना नहीं है तो एबनॉर्मल फिनोमेना है। अगर बच्चा बचपन में शरारत नहीं किया, कभी स्कूल से कंप्लेंट नहीं है, कभी किसी के कॉपी को नहीं फाड़ा छिपाया नहीं, तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, याद रख लीजिए। यही लोग आगे चल करके बीमारी होगी। क्यों बोलते हैं ना, हमारा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता रहा, हमने कहा बस यहीं पे गलती कर गए। फर्स्ट का क्राइटेरिया मत रखो, थोड़ा क्वेश्चन दे के चलो, 4th 5th 6th, अरे 2 नंबर नहीं कम और 2 नंबर ज्यादा, हाउ डज इट मैटर, है ना। जो टॉपर कर दिया उसको तो हमेशा एंजाइटी रहेगी। जो आईआईटी के बच्चे हैं वहां पर क्यों परेशानी? अगर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर का आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, सुसाइड या डिप्रेशन क्यों ज्यादा होता है? वहां तो हर जगह के टॉपर पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी तो एक ही टॉपर होगा, है ना। इस फैक्ट को हमको एक्सेप्ट करना है और हमेशा याद रखिएगा, मतलब इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब हम पीछे देख रहे हैं कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, है ना। अब आप लोगों की शिकायत अगर आपके एचओडी और टीचर के पास नहीं जाती है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ कुछ होते रहना चाहिए, ठीक है। हमारे भी स्टूडेंट है, रात में घूम रहे हैं लड़के लड़कियां, तो कुछ फैकल्टी हमसे बोले रहे सर ये लोग घूम रहे हैं, हमने कहा अभी इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, हाउ डज इट मैटर? अरे दिस इज द एज, दैट इज हाउ दे डेवलप। आप कितना रोकना चाह रहे हैं उनको, क्यों रोकेंगे? मेंटल हेल्थ इश्यूज यही है, वेलबींग का। आप हमेशा याद रखिए, जो बच्चे मैदान में खेलते कूदते हैं उनको क्या बीमारी होनी, आप बताइए। जो इंट्रोवर्टेड हैं, जो घर पे मोबाइल में लगे हैं, जो इंडोर तक सीमित हैं, इससे बात मत करो, वहां मत करो, सारी बीमारी वहीं पर आएगी, क्योंकि वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग जो यंगस्टर्स हो साइकोलॉजी के, तो बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं हो, थोड़ा बहुत परेशान करना चाहिए टीचर्स को, है ना, जिससे कि ये लोग भी समझते रहें कि आप भी प्रेजेंट हैं। सब लोग अपने टाइम में कुछ कुछ किए होंगे, ठीक है, इसमें भी कोई मत सोचिएगा, है ना। एंड दैट इज व्हाई दे आर टीचिंग, है, बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए सबको पढ़ा रहे हैं। डीप असेसमेंट्स, देखिए हमेशा याद रखिए, बहुत थारो असेसमेंट होता है जब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। सीरियस जोक से पार्ट, लाइटर बातचीत हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि माहौल को बहुत वो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से के साथ बैठ जाते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू डील विद द इंडिविजुअल, यू आर डीलिंग विद द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग।
When we treat the patient, we do not treat the patient. We treat the self of the patient. आप समझिए, तो जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हम करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, वो वहीं से आता है. अगर आप किसी के साथ 5 मिनट ईमानदारी के साथ बैठ जाएं और डिग्निफाइड तरीके से उससे कम्युनिकेशन करें, कोई भी है, तो आप देखेंगे दे विल फील बेटर. They will be easily connected to you. And that is the hallmark of a good psychologist. लड़ाई झगड़ा करते रहना, डिस्प्यूट करना, है ना, अरे हम 4 लोग अगर आपस में ठीक से नहीं बात कर पा रहे तो आई एम नो मोर ए गुड साइकोलॉजिस्ट. आई टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. अगर हमको बीपी हो जाए, हम टेम्पर लूज करने लग जाए, तो हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करने की आवश्यकता नहीं है. इसका अलग हम उस फिट नहीं है. ठीक है, तो इस प्रोफेशन में अगर हैं तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आप कैसे चीजों के साथ चलें. तो ये जो डीप असेसमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन फ्रायड ने थेराप्यूटिक अलायंस की बात किया था. ठीक है, साइको एनालिसिस पूरा इसी पर बेस्ड है. ये क्यों बोला जाता है? अलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू वी कनेक्ट विद द क्लाइंट, पेशेंट, इंडिविजुअल, दैट मैटर्स मोस्ट. आप सुपरफिशियल बात करेंगे, यू विल नेवर फील सेटिस्फाइड. बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना जो गोल्ड मेडलिस्ट लिखा रहता है. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हो. और कुछ हैं जो 1-2 धक्के के बाद भी निकले थे, लेकिन इतने पॉपुलर और इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि पूछिए नहीं. डिफरेंस क्या है? कम्युनिकेशन. हाउ डू दे टॉक टू देयर क्लाइंट, हाउ मच टाइम डू दे गिव, राइट. जब मरीज जाता है, डॉक्टर साहब अपने आप में बिजी, हम गोल्ड मेडलिस्ट बोर्ड लगाए हैं बाहर, ठीक है, लेकिन जब गए तो हम मोबाइल देख रहे हैं, कुछ बात, अरे बोलो ना क्या क्या बीमारी, हम दे रहे हैं दवा. आपने लिख दिया, बिल्कुल सही दवा लिखा है, लेकिन जब बाहर निकला मरीज तो उसको यह लगता है कि नहीं, डॉक्टर साहब ने ठीक से हमको देखा नहीं. वही जब आप दूसरे के पास जाइए, और भाई क्या हाल चाल है, पिछली बार आए थे यार, उसके बाद कुछ पता नहीं चला तुम्हारा, और कैसा चल रहा है, ये तो मौसम ही ऐसा है बीमारी का, ये हो रहा, लगा डॉक्टर साहब ने तो आधी बीमारी ऐसे ठीक कर दिया. यू गॉट माय पॉइंट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न टू बी कनेक्टेड विद आवर पेशेंट्स एंड विद इंडिविजुअल्स. अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और अगर आपके कोई कलीग दूसरे सब्जेक्ट के भी हैं, अगर उनको कोई परेशानी है तो आप 5 मिनट अगर आप उनसे पोलाइटली अच्छे से बात करेंगे, आप देखेंगे बहुत कुछ हेल्प हो गया, है ना. यू विल बी एबल टू सेव द लाइफ ऑफ मेनी पीपल, आई टेल यू. मिक्स्ड डायग्नोसिस स्टडीज, हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक चीज होती है. क्यों डिफरेंशियल रखा गया? डायग्नोसिस एक किया सकता था, डिफरेंशियल से इसीलिए रखा गया कि थोड़ा सा स्कोप क्लिनिशियन के पास भी रहे. आपका ईगो नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने डायग्नोसिस कर दिया तो अब इसको चेंज नहीं करेंगे. हमारे यहां केस कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, वीकली. केस कॉन्फ्रेंस में जब केस को प्रेजेंट किया जाता है तो कई बार डायग्नोसिस चेंज हो जाती है. वहां पर जब डिस्कशन होता है तो बोलते हैं नहीं, जो इनिशियल डायग्नोसिस हमारी थी वो प्रॉब्ली दैट इज नॉट फिटिंग इन. तो डिफरेंशियल में चलो क्या दिक्कत है. और उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके भी अंदर आ गई. कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी साइन ऑफ इंटेलिजेंस. आप बहुत जिद पकड़ लें कि आप ही सही हैं हमेशा, तब तो फिर आप समझिए कि बड़ी परेशानी हो गई. कई बार उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सबसे ऊपर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, हमने डायग्नोस किया था, हो सकता हम ही 4 महीने के बाद जब केस प्रेजेंट हुआ तो हमको लगा कि नहीं भाई, उसमें हमसे कुछ चीजें छूट गई शायद. तो इफ वी आर ओपन, और ये रिसर्चर को हमेशा हम बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा जब कोई भी रिसर्च प्लान कर रहे हो तो 50 लोगों का सैंपल लेने की जरूरत नहीं है. आप 5 भी ले लोगे ना, और उसमें अगर गहराई तक आप चले गए तो आप किताब लिख दोगे. और सैंपल साइज बढ़ाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम उतने सुपरफिशियल होते चले जाते हैं. इस चीज को याद रखिएगा. आप जब 100 लोगों का डेटा लेते हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन दे करके बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर 5 लोगों का आपने डेटा लिया है तो आप उसका पूरा हिस्ट्री, डिटेल्स, माइलस्टोन्स, you will try your best to explore all best possible available information, and then you will know the individual, then you will know the self of that individual. That is most pertinent. तो ये जो डायग्नोसिस मैकेनिज्म बेस्ड रिसर्च, हमेशा जब भी कोई चीज किया जाता है ना, तो ये टूल हम इसीलिए बोलते हैं कि पुराने टूल्स नए टूल्स का इशू नहीं है. आप टूल को पहले पायलट स्टडी करिए,
हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम देखते हैं आजकल ट्रेंड बन गया है, 10 टूल यूज कर रहे हैं, 11 हमने कहा यार क्या बकवास करके रखा है। हमारे यहाँ के भी बच्चे हैं, सब तो साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट इज कॉमन एवरीवेयर, इसे मत सोचिएगा कि कहाँ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 10 टूल अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, तो आप क्या उसका मरीज का तो कबाड़ा निकाल दिया आपने। हमको आप बोलेंगे आधा घंटा बैठ जाइए टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो जाए। और 4 घंटे का टूल आप क्या यूज कर रहे थे भाई एक इंडिविजुअल के साथ, उसका क्या मोटिवेशन होगा। हमारा तो मरीज है बेचारा, चलो उसको उम्मीद है कि शायद हम ठीक होंगे, कोशिश कर रहे हैं। जब आप जनरल पॉपुलेशन में जाकर के डेटा कलेक्ट करते हो, आपने पकड़ा, आपको तो लगा ये तो हमारा क्लाइंट है, चलो इसके पास 6 टेस्ट यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन यूज करते हो कि नहीं? अब बड़े खुश होते हो गया, वो भी बिना मन के करता है, उसको लगता है कहां से सरदर्द सामने आ गए, आपको देख के अवॉइड करेगा। नेवर डू दैट, स्पेंड सम टाइम विद देम, टेक देयर। देखिए हमेशा याद रखिएगा, कंसेंट का मतलब सुपरफिशियल कंसेंट नहीं होता है, कंसेंट शुड कम फ्रॉम विद इन। Consent will come only when you have been able to explain them what all research you are interested in. Why are you interested in conducting that research? आप गए 10 क्वेश्चन आयर दे दिया कि आज दे रहे हैं कल करके दे देना, तो उसने भी देखा कि मूवी भी देख रहे तभी टिक मार दिया, और कुछ सोच रहा था लगाओ यार ये लोग ऐसे ही आ गए दे दो। बाद में आप बोलते हो कि आपका ठीक से मैच नहीं कर रहे हैं ग्रुप्स। हमेशा याद रखिए बहुत ही इन्वॉल्व होकर के काम करना है रिसर्च में, सुपरफिशियल लेवल पे रिसर्च मत करिएगा, आप कहीं पे स्टडी नहीं कर पाएंगे। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस में लोग उलझ जाते हैं। इफ यू डोंट नो अबाउट योर ओन वर्क, अगर आपने किया है देन यू कैन ऑलवेज टेक ए स्टैंड। कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन फिजाइन के चक्कर में मत पड़िए, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं अगर आप जानते हैं, नहीं तो एवरीथिंग यू विल मेक कॉम्प्लिकेटेड। एंड कल्चरल फैक्टर्स, अनलेस वी नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट, वी विल नेवर बी एबल टू डू द जस्टिस विद आवर डेटा। आप समझिए बात को, कोई भी आप टूल बात करिए, कोई भी टूल इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस टेस्ट, हर बच्चे का अलग अलग बैकग्राउंड है, इसीलिए अलग अलग टेस्ट भी डेवलप होता है। और जहां पे आपको डाउट है कि कहीं पे कुछ कल्चर फ्री, कुछ ऐसा नहीं होता, एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, वो सुपरफिशियल लेवल तक ही है। जब हमारे यहाँ मरीज आता है तो आप समझिए कि एक ही घर में 3 लोग हैं, एक ही क्यों डिप्रेशन हुआ, आप ये बताइए। 10 लोग थे, इकोनॉमिकली बहुत डिस्टर्ब थी फैमिली, लोन था, ये था, एक ही ने क्यों सुसाइड किया? कोपिंग मैकेनिज्म में अंतर रहा होगा, है ना। दुनिया को देखने का तरीका अलग था, परसेप्शन अलग था, इंटरप्रिटेशन अलग था, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वाज डिफरेंट, ठीक है, कोपिंग स्ट्रेटजीज वे आर डिफरेंट, ठीक है। तो यानी कि सब लोग, हम लोग अलग अलग हैं, तो हमको उसी पर्सपेक्टिव में चलना है। इस साइकोलॉजी के स्टूडेंट को हमेशा इसीलिए इशू हमेशा उठता है कि हम लोग सोशल साइंस के पार्ट हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग इंपिरिकल बेसिस पर चलें। ठीक है, इंपिरिकल होना है, लेकिन क्वालिटेटिव पार्ट को हम नहीं छोड़ सकते। इन एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस नन ऑफ आवर रिसर्च इज कंप्लीट, आई टेल यू। क्योंकि जब तक आप उसको जेन्युइनली एक्सप्लेन नहीं करेंगे डिस्कशन में, रिजल्ट तो कुछ भी आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करिए, डिस्कशन में पता चलता है कि रिसर्चर कितना इन्वॉल्व था अपने वर्क में। For each and every finding you can genuinely explain कि इसकी फाइंडिंग अगर ये आई है तो ऐसा क्यों हुआ। कई बार लोग बोलते हैं ना कि दैट इज नॉट मैचिंग विद द अर्लियर रिसर्च फाइंडिंग्स। यस, आज से 20 साल पुराना का आप साइटेशन दे रहे हैं, हो सकता नहीं मैच करे। दूसरे जगह का आप कर रहे हैं, हम झारखंड में बैठे हुए हैं, यहां का सोच अलग है अल्कोहल में, है ना, दूसरे जगह का अलग होगा। मेंटल इलनेस के बारे में हमारा एटीट्यूड जितना पॉजिटिव है, यहां पे हम एग्जांपल देते हैं आपको, मैक्सिमम केसेस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट इन सीआईपी एंड रेनपास आर फ्रॉम वेयर, नॉट फ्रॉम बिहार और झारखंड, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इसका मतलब स्टिग्मा वहां पर शायद ज्यादा होगा। और बिहार के मरीज इतने प्यार से लोग आते हैं बिहार और झारखंड के, कि अगर मरीज को एडमिट करते हैं तो 4 बार फोन करते हैं, सर ठीक हो गया तो ले जाएं। और कुछ ऐसे भी कल्चर है जहां पे एक बार एडमिट कर दिया है तो फिर आना नहीं है जल्दी, ठीक है। तो यही कल्चरल डिफरेंस है। लोग मजबूरी में घर लेके जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाते हैं शाम को। कई बार मरीज को एडमिट करना पड़ता है शाम को, इसलिए कि गार्जियन छोड़ करके चले गए। आप अपने मां बाप को छोड़ सकते हैं क्या?
हमारे मरीज सबसे सेंसिटिव होते हैं, ये फिर से मेंटल हेल्थ का समझिए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसको होता है ज्यादा? जो दुनियादारी कम समझता है, बहुत भोले भाले लोग होते हैं, इनोसेंट होते हैं। अरे कोई अपने माँ बाप अपने बच्चे को अस्पताल में एडमिट करके और उसके बाद कभी नहीं आवे लेने, तो किसकी मानसिकता खराब थी? मानसिक रूप जिस मरीज एडमिट किए उससे ज्यादा खराब उसकी थी जिसने एडमिट करवाया। आप समझिए चीज को, यहीं पर रिसर्चर को समझना है। हम बार बार ये क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? व्हेन यू आर सिटिंग विद द क्लाइंट, यू ट्राई टू गेट इनटू व्हाट ऑल बैकग्राउंड डज ही कम फ्रॉम, व्हाट इज द मोटिवेशन behind he being brought to us for help. सुपरफिशियल लेवल पर कभी मत करिएगा। आपके पास कितने लोग, आप लोग सब लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, हमको लगता है, आपको लगता है। डू वी एक्चुअली नो ईच अदर? टेल मी ऑनेस्टली। सुपरफिशियल लेवल तक बस जानते हैं। लेकिन हमारा मरीज जब हमारे साथ बैठेगा तो एटलीस्ट हम उसको काफी दूर तक जान जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमसे शेयर करते हैं। और तभी जब फाइंडिंग आता है हमारा, तो हमको कॉन्फिडेंस होता है। यहां पर प्रेजेंटेशन होता है पीएचडी का, सर है, मैडम, सब लोग रहती हैं। कई बार होता है सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल, हम बोलते हैं सैंपल साइज इज नॉट इंपॉर्टेंट। सैंपल साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन हैव वी बीन एबल टू कलेक्ट, व्हाट ऑल बेस्ट इंटरवेंशन हैव वी बीन एबल टू प्रोवाइड, what all changes have actually occurred, for how long those changes have been able to be sustained, that is most important, follow up, है ना। और तब हम बोलते हैं कि नहीं, शायद ये मेथड शायद अच्छा है, ठीक है। हम इसीलिए इफिकेसी टर्म जल्दी यूज नहीं करते हैं किसी थेरेपी के लिए। अरे इफिकेसी तो हर चीज की है, हम एप्लीकेशन तक चुप हो जाते हैं। हमको पता है हम एप्लीकेशन ही यूज किए हैं भाई, इफिकेसी हम कैसे चैलेंज करते हैं? CBT सुपीरियर टू एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हर थेरेपी अपने आप में यूनिक है, जैसे हर इंडिविजुअल। कोई थेरेपी किसी इंडिविजुअल को ज्यादा सूट करेगा, कोई थेरेपी किसी को यूज करेगा, कुछ एडजंक्ट के साथ आप यूज करेंगे। बट इट कैन नॉट बी कि नहीं सब हम CBT के एक्सपर्ट हो गए, CBT ही करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि वो किसी को सूट करे, किसी को उतना सूट नहीं करे। हम ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे, हमें निकलना भी है, लेकिन हम देख लिए वैसे टाइम है। फोकस ऑन लो रिसोर्स केयर, हमेशा। मेंटल हेल्थ का गैप क्यों है इंपॉर्टेंट, आगे शायद आएगा इसमें। हमारे पास टोटल अभी अगर आप देखेंगे झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऑफिशियली वी क्लेम कि वी डू हैव डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, बट वी डू नॉट हैव सच फैसिलिटीज। ठीक है, जितना मेंटल इलनेस का प्रीवैलेंस है 15 to 18%, क्या हम उसको जेन्युइनली मीट कर पाते हैं? कितने ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं? उसमें साइकियाट्रिस्ट सबसे कम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उससे कम है, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर उससे भी कम है। अब सवाल ये कि इसको कैसे कोप करें। तो आजकल हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजर की एक ट्रेनिंग हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें कई बच्चे यहाँ से गए होंगे शायद, ठीक है। और इसको हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सच केसेस एंड दिस शुड बी जनरली रेफर्ड। वहां पे डिजिटल मेंटल हेल्थ का रोल आ जाएगा। डिजिटल एकेडमी हमारे यहाँ, ठीक है, डिजिटल बेसिस पर दे कैन कनेक्ट टू अस, हेल्पलाइन है ना, एंड देन वी कैन प्रोवाइड हेल्प टू देम। तो ये जो इस टाइप का, इसमें बहुत रिसर्च हो रहा है कि क्या इसकी इफिकेसी है क्या वर्चुअल रियलिटी थेरेपी का, और अगर है तो कितना है। हमारे यहाँ शुरू हो गया काम। क्यों? हम लोग तो फेस टू फेस करते हैं, पहले हम भी बहुत अप्रोच करते थे, क्या यार वर्चुअल में थेरेपी होगा, लेकिन अब लगता है कि बीच बीच में कर सकते हैं। जैसे आपका रेपो अगर स्टेब्लिश हो गया, 2-3 सेशन आप कर लिए, तो अगर 2 सेशन में कोई बोला कि हम दुमका से नहीं आ पाएंगे बोकारो से, तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, 1-2 सेशन है बीच में हम लोग वर्चुअली कर लेते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? सो दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प टू द क्लाइंट्स। बट उसका इफिकेसी भी हमको अब एक तरीके से चेक करना है कि क्या वाकई में इसका रिजल्ट कुछ मिलता जुलता है पहले की तरह कि नहीं, है ना। दैट विल डिपेंड ऑन द मोटिवेशन ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज योर ओन मोटिवेशन एज ए थेरेपिस्ट। लो रिसोर्स केयर में ही आएगा ये, ठीक है। जो डिजिटल मेंटल हेल्थ केयर या डिजिटल हेल्थ की पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सिर्फ इसीलिए शुरू किया गया कि लोग जो डॉक्टर के पास जाने में, आने जाने में खर्च करते थे पैसा, समय खर्च करते थे, उसको कैसे रोका जाए।
जिससे कि थोड़ा और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए ट्रीटमेंट का एक मेथड, और दूसरा एक ये भी हो जाए कि हम दूर तक पहुंच सकें। गांव से भी आदमी अगर हमसे बात करके बतलाता है ये सिम्टम्स, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप भी आ गया है, तो उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। इस पर भी काफी वर्क रिसर्च शुरू हो गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अच्छा फंडिंग का प्रपोजल भी है। कम्युनिटी वर्कर्स को ट्रेन करना, लोकल रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी वर्कर मीन्स व्हाट? रिसोर्स पर्सन, दैट टू लोकल रिसोर्स पर्सन। जैसे स्कूल टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, मुखिया हैं, जो लोग थोड़ा पावरफुल हैं, जो लोग थोड़ा पॉपुलर हैं, है ना, अगर उनको हम कुछ बेसिक ट्रेनिंग देते हैं तो उनके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को समाज तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज द की फॉर हेल्पिंग दीज पीपल। अगर शुरुआत में हम मदद कर देंगे तो मानसिक बीमारी तक वो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। अफोर्डेबल इंटरवेंशंस एंड इंटीग्रेटिंग बायोलॉजी विद कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये पूरी दुनिया में चल रहा है बायो साइको सोशल मॉडल, ठीक है। बीच बीच में लोग बायोलॉजी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, दैट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर सोशियो कल्चरल पार्ट ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल, आई मीन द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सेल्फ को हम ट्रीट करते हैं ना एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट। हम बार बार इसको क्यों बोल रहे हैं? वी डू नॉट टॉक टू यू, वी टॉक टू योर सेल्फ। व्हेन वी आर कनेक्टेड थ्रू आवर सेल्फ, ठीक है। अगर सेल्फ में जब कंप्रोमाइज होता है तभी इश्यूज शुरू होते हैं। मैडम की एक बुक है लिविंग इन रिलेशनशिप पर, ठीक है। अभी मैडम वाइस चांसलर साहब से बोल रही थी, हम पीछे पीछे थे, कि एक रिसर्च करना चाह रहे हैं कि शादी के पहले ही सब घूम मिल लें। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है, गेस्टाल्ट का पढ़िएगा, कि होता क्या है कि जब तक मैरिज नहीं हुई तब तक सेल्फ कंप्रोमाइज रहता है। एक बॉयफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड, यंगस्टर्स बैठे हैं, दे विल अप्रिशिएट दैट पार्ट, कि क्या होता है उस समय। बड़ी दोस्ती है 2 साल 3 साल से, आप कोई चीज बना के लाए, देखो ये हमने बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा तब भी आपने तारीफ कर दिया, नहीं अच्छा है। बोलो चलो आज मूवी चलते हैं, बड़ी अच्छी मूवी लगी, आपका बिल्कुल मन नहीं था कि जाना चाहिए, बट यू एग्री टू दैट, ठीक है। ये सब कहां तक है? यू आर कंप्रोमाइजिंग विद योर ओन सेल्फ, दैट इज ऑल राइट। लेकिन आफ्टर मैरिज द सेम कपल स्टार्ट स्क्वेरलिंग विद इन नो टाइम, दे विल फाइल ए डिवोर्स पेपर ऑल्सो, है ना, क्योंकि ओरिजिनल सेल्फ तब समझ में आता है। यू गॉट माय पॉइंट? तो दैट इज हाउ वी लिव एक्चुअली। तो एक जो सामाजिक जीवन है वो अलग है, लेकिन जब व्यक्तिगत लेवल पर आप चलेंगे किसी के साथ तब असलियत समझ में आती है। तो वहां पर कंप्रोमाइज नहीं होगा तो सेल्फ गेट्स डिवाइडेड, डाइल्यूटेड रादर, ठीक है। तो हम अपना सेल्फ दूसरे को दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू प्लीज द अदर पर्सन, है ना, लेकिन रियलिटी में लॉन्ग टर्म में हो नहीं सकता है। तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एआई एंड बिग डेटा, पूरा दुनिया एआई पे चल रहा है, इस पे बहुत सारा डिबेट चल रहा है पूरी दुनिया में। कहां तक चलें, कितना यूज करें, इसकी कितनी ट्रेनिंग दी जाए, इसके क्या यूज है? तो यूज ही यूज है, इसमें कहीं पे कोई नुकसान नहीं। एआई का एप्लीकेशन इज ए ग्रेट थिंग, लेकिन इसका एब्यूज भी बहुत है, और एब्यूज सबसे ज्यादा एकेडमिक्स में हो रहा है। ये प्लेगरिज्म चेक जो अभी शुरू हुआ है, वो क्यों शुरू हो गया है? 5 साल पहले तो नहीं था, पहले भी चीजें होती थी लेकिन इस कदर नहीं होती थी। अब तो अगर आप चाहें तो 4 दिन में किताब लिख करके दे दीजिए, लगेगा सब आप ही का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पेपर्स, साइंटिफिक पेपर्स, लैंसेट में पब्लिश हुआ पेपर, उसमें लोगों ने क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है। तो अब चीजें बदल रही हैं। एआई का एप्लीकेशन भी कुछ अच्छी बात है ना। आप लोग भी ऐप डेवलप करिए, हेल्प करिए। एआई का यूज बहुत कुछ है, बहुत कुछ फिल्टर हो जाएगा, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, प्रिसीजन साइकेट्री, ठीक है। तो प्रिसीजन विल बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ एआई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसका एब्यूज नहीं होना है। एब्यूज जब हम लोग शुरू कर देते हैं तब फिर उसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है, ठीक है। जितने आईआईटीज हैं अगर आप देखेंगे वहां पर, उसके लिए एक अलग सेल बना दिया गया है, उनके यहां भी वही इश्यूज हैं, ठीक है। कि जितना ये लोग काम कर रहे हैं, कितना सही कितना गलत है कहने मुश्किल है। जो डेटा चाहिए आप तुरंत बना लीजिए, जो पेपर चाहिए आपको 5 मिनट में बन करके आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इससे क्या कर रहे हैं हम? वी आर कंप्रोमाइजिंग विद आवर ओन ब्रेन, सिंपल।
ठीक है, जैसे SPSS आया था, बहुत अच्छा मॉडल है। हम हमेशा बोलते हैं बेटा SPSS तब सीखो जब खुद आता हो स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग आपको ये नहीं समझ में आएगी कि SPSS ने डेटा तो एनालाइज कर दिया, इसको इंटरप्रेट कैसे करें। ये आप समझ लीजिए, इंटरप्रिटेशन इज नॉट दैट सिंपल, प्लीज रिमेंबर। अगर आपको काई स्क्वायर टेस्ट करने नहीं आता है खुद, ठीक है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं आता, मल्टीवेरिएट नहीं आता, तो आप कुछ SPSS कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, एंड यू विल नेवर बी एबल टू इंटरप्रेट एनी रिजल्ट। वो आप हमेशा स्टेटिशियन को ढूंढेंगे या किसी को जो छोटा मोटा ओरिएंटेशन, उससे आप कुछ रिजल्ट बना के अपना कर लेंगे काम, बट यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उस एस्पेक्ट को समझिए। तो पहले चीज सीखने की कोशिश करिए। रिसर्च का बेसिक वो होता है कि फंडामेंटल्स हमको आने चाहिए। अब एट्स करेक्शन है, कितना सिंपल सा पॉइंट है। जब काई स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हो, और आजकल बच्चों से पूछिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, काई स्क्वायर का फार्मूला पूछ लो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं सर हमने तो उससे कर लिया था, PhD के स्टूडेंट वाइवा के टाइम में। अरे भाई, ये PhD डिग्री से क्या फायदा है? आपको कल पढ़ाने दे दिया जाएगा तो आपको पढ़ाना होगा, ये कहने से नहीं होगा कि ये देखो इसमें जरा ढूंढ लेना। किताब में तो बहुत कुछ लिखा है पहले से, बट यू हैव टू टीच देम, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में भी जाएंगे। तो ये जो यूज रिस्क प्रिडिक्शन, ये जो है यूज फॉर रिस्क प्रिडिक्शन, ये सबसे ज्यादा यूज किस में है? प्रोग्नोसिस, आउटकम, है ना, कि अगर ये सिम्टम्स हैं, ये संभावना है इसकी, ये ट्रीटमेंट अगर हम लोग शुरू करें तो इसमें शायद इस टाइप का आउटकम आएगा। प्रिसीजन साइकेट्री में इसका यूज है, मेंटल हेल्थ में पूरा यूज है, ठीक है। इट इज मैटर ऑफ टाइम। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसी चीज बतला रहे हैं जिसका रिसर्च मेथड से कुछ लेना देना नहीं है। यहीं से आपको दिमाग में आएगा कि आप किस टाइप का डिजाइन करें। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए भी है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हम अपने फील्ड की बात कर रहे हैं। एनालाइजिंग बिहेवियर एंड पर्सनलाइजिंग केयर, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल को, जब मरीज आता है तो हम लोग फैमिली सेशन भी कंडक्ट करते हैं, फैमिली थेरेपी करते हैं। क्यों करते हैं? साइकोपैथोलॉजी डज नॉट लाई इन द इंडिविजुअल, इट लाइज इन द फैमिली। हमेशा याद रखिएगा, साइकोपैथोलॉजी परिवार में होता है, इंडिविजुअल में नहीं, क्योंकि ओरिजिन वही है, ठीक है। जब तक परिवार के सदस्यों को सही जानकारी, एजुकेट नहीं किया जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड जेन्युइन हेल्प टू द क्लाइंट। मरीज कुछ भी करेगा, ही इज लेबल्ड। मरीज ठीक होके जाता है, जब घर में कुछ शादी ब्याह की बात होती है तो उसको शामिल नहीं करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसको अलग कर देते हैं, उसकी बीमारी बढ़ जाती है, उसको लगता है यार हम ठीक नहीं हुए, लोगों का भी हम पे ट्रस्ट नहीं है, लोग हम पे विश्वास नहीं करते, ठीक है कि नहीं? तो इंक्लूसिव होना है, और उसी के लिए लार्जर ग्रुप में किया जाता है। फैमिली थेरेपी सेशन जो होता है, इसलिए फैमिली के साथ करते हैं। दे मस्ट बी जेन्युइनली एजुकेटेड अबाउट व्हाट इट इज। तो ये जो बिग डेटा पर्सनलाइज केयर, ये तो हमेशा रहेगा था। यूथ एंड मेंटल हेल्थ, इसमें सबसे ज्यादा स्कूल मेंटल हेल्थ पर आजकल फोकस है, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर सेंटर ऑफ वेलनेस वेलबींग, तरह तरह के नाम पर चीजें डेवलप हो रही हैं। आपके विश्वविद्यालय में भी शुरू किया जा रहा है, जस्ट टू कीप यू हेल्पी इन ए गुड फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है। तो एक मंत्र एक होना चाहिए, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज एंटी डिप्रेसेंट, सिंपल याद रखिए। जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, डिप्रेशन भागेगा। जो लोग आउटडोर गेम में विश्वास करते हैं, वॉक पे जाते हैं खुशी खुशी, ऐसे भी लोग होते हैं पुश करके भेजे जाते हैं, कोई एंडोर्फिन रिलीज नहीं होता है, कोई फायदा नहीं। मजा तभी है जब आप उसको एंजॉय करें। अब जब आप मजबूरी में भेजे जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला है, तो घर वाले जबरदस्ती धक्का दे के बोले जाओ आधे घंटे थोड़ा घूम के आओ, तो वो तो आपको भी अंदर अंदर कर्ज कर रहे हैं और डॉक्टर साहब को भी, कि कहां से तुमको क्या एंडोर्फिन रिलीज होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अनलेस यू स्टार्ट एंजॉइंग योर वर्क, रियलाइज दैट व्हाट बेस्ट कैन यू डू टू इंश्योर टू कीप योरसेल्फ इन ए बेटर हेल्थ, है ना, नथिंग विल चेंज। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस उसी में आएगा। तो इसमें भी बहुत रिसर्च हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखा जाता है कि व्हाट आर लाइफ चेंज, जैसे जब से स्कूल का प्लेग्राउंड छोटा होता चला जा रहा है, परेशानी स्कूल में बढ़ती चली जा रही है। पहले स्कूल में खेलने का एक पीरियड होता था और बच्चे बिल्कुल फ्रीडम दिया था खेलने को, नहीं पीरियड रहोगे अंदर ही, बाहर धूप है, बारिश हो रही। अरे बच्चे अगर स्कूल में से कपड़ा नहीं गंदा करके आवे छोटा बच्चा,
तो इसका मतलब बहुत गलत बात है। कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ ही सब यही सब में खेल कूद में होगा, वो होना चाहिए था। तो आजकल ये सब खत्म हो गया, तो सब क्या हो गया है, सब बैठे रहते घर पे भी। अब कहाँ फ्लैट होता है, एक ही बच्चा होता है ज्यादातर, चलिए 2 हो गए, ठीक है। तो क्या होता है 24 आवर्स दैट चाइल्ड हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको आप परफेक्शन में तौलते रहते हो। वो आज इतनी देर से लगातार एक ही जगह बैठा है, आज वो इतना ही पानी पिया है, आज ये किया है। अरे भाई, वो क्या आप किसी लैब में बैठे हो क्या? योर हाउस हैज बिकम ए लैब टू टेस्ट हाउ योर चाइल्ड इज ग्रोइंग अप। दैट इज प्योर पैथोलॉजिकल अप्रोच आई एम टेलिंग यू। अरे भाई, ये सब तो हमको सोचना और देखना होगा। टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आजकल बच्चे मोहल्ले में खेलने कहां जाते हैं, है? और जब स्कूल से आता है तो पहली बात यही पूछा जाता है, और क्या होमवर्क मिला, कितना काम किए। आप जब शाम को यहां से जाएंगे ऑफिस से घर, तो यही पूछेंगे और कैसी पढ़ाई, अरे ये भी पूछो, और क्या खेलकूद किया, क्या शरारत किया, और कुछ स्कूल से शिकायत कब आ रही है, थोड़ा सा उसको भी लाइटर उसमें दीजिए। लेट हर फील दैट यस दे आर लव्ड, दे हैव बिकम ए टूल फॉर प्रोड्यूसिंग मार्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड, वो एक इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, है ना। और 24 आवर्स आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए। आज इतनी देर सोया था, आज रात में उठ करके ये कर रहा था। अरे भाई, उसका अपना लाइफ उसको जीने दो, है? कहां आप उसका 24 आवर्स लगे हुए उसको, है? ये सब नहीं करना है। द थिंग्स मस्ट मूव इन इट्स ओन पेस, है ना। वी हैव टू ओनली फैसिलिटेट, ठीक है। कहीं पर कोई कमी है उसको जरूर पॉइंट आउट करिए, लेकिन हर जगह पे रोकने के, हर जगह पे उसको बतलाने का कि आप ही को सारा ज्ञान प्राप्त है, आप ही पेरेंट्स हैं, आप ही को सब अनुभव है, ऐसा नहीं होता है, नेवर। तो मेंटल हेल्थ अफेक्टेड बाय पॉवर्टी, इक्विटी की हम बात कर रहे थे। ये सोशल डिप थेरेपी, ये हाइपोथेसिस था। बहुत साल तक लोग बोलते थे कि गरीब, जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो गरीबों में ज्यादा पाया जाता है। बाद में दूसरी हाइपोथेसिस आई, ये रिसर्च का ही पार्ट है, कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से गरीबी हो जाती है क्या? दोनों चीजें सही हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब 20 साल तक इलाज चला। जो आदमी एक घर में जिसके स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज है, आप समझिए उसका मेंटल हेल्थ पूरे फैमिली का। मरीज को जब लेके जाना है तो परिवार लेके जा रहा है अस्पताल, घर का माहौल अलग है, ठीक है। जितना आप पैसा कमा रहे हैं उसमें काफी कुछ उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सोशल स्टिग्मा अलग है, परेशानियां बहुत हैं। तो उस एस्पेक्ट को देखना दोनों तरफ से। आप पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। दैट इज एज सिंपल एज एनीथिंग। तो इक्विटी मतलब हर चीज को उस पर्सपेक्टिव में देखना है। कोई समाज ऐसा नहीं कि किसी में मानसिक बीमारी नहीं होगी। क्या जिसके पास ज्यादा पैसा उसको डिप्रेशन नहीं होता? तो फिर तो इसका मतलब, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं। इसका मतलब है कि दैट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या किसी कल्चर में कोई चीज बिल्कुल नहीं होती? ऐसा इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दैट इज प्रीवेलेंट एवरीवेयर, ठीक है। इन व्हाट वे डू यू लुक एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज डिफरेंट। कई बार चीजों को लोग लाइटली लेते हैं और कई बार थोड़ा सा उसको ज्यादा सीरियसली ले लिए। डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहा है हर टाइप के समाज में, ठीक है। सबसे ज्यादा तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर किसी को मानसिक बीमारी हो जाए और आसपास के लोगों को पता चल जाए तो विल बी डिस्क्रिमिनेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर किसी को, आपके कोई गेस्ट आते हैं घर में, पता चल जाए कि घर में इनके कोई बीमार है, तो उसको उसी नजर से देखेंगे, उसकी बात को उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, और दुनिया की बातचीत सब होगी लेकिन उसके हित की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो एक्सेस इश्यूज, यस दैट इज ए बिग गैप। धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको चाहती है कि हम कैसे इसको इंप्रूव करें। ये सब रिसर्च गैप्स में भी आता है, हमेशा याद रखिएगा। कम्युनिटी बेस्ड का सबसे ज्यादा अच्छा अभी स्कोप है काम करने का। In what way can you integrate the community from mainstream of life? That is most significant part. जितने कम्युनिटी बेस्ड है इंडियन, ये ICSSR देखिए, ICMR देखिए, WHO प्रोजेक्ट देखिए, DST देखिए, सब लोग कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको पता है कि इंडिविजुअल फोकस से हटा करके हमको कम्युनिटी तक पहुंचना है। हम लोग भी, जो हमारा एक बेसिकली टर्सरी केयर सेंटर है, इंस्टीट्यूट, लेकिन हम लोग अपना जो कैंप वगैरह है गांव में लगाते हैं फिक्स जगहों पर,
कि हर महीने जब जाते हैं तो करीब 700 से 800 मरीज वहां पर आते हैं, ठीक है, इसलिए कि हमको पता है वी मस्ट कैटर टू देम। जैसे कि एपिलेप्सी, सर आप भी हैं यहाँ पर, एपिलेप्सी झारखंड का जो प्रीवैलेंस है दैट इज आई थिंक दैट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इन द कंट्री। जितने भी हमारे कैंप होते हैं वहां पर करीब 30% केसेस एपिलेप्सी के हैं। अब क्यों है? न्यूरोसिस सर्कोसिस एक चीज होता है जिसमें सिस्ट जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है, और ये क्यों होता है? इम्प्योर्ड वाटर इनटेक की वजह से, ठीक है। कई बार लोग कुछ जैसे कि ये पिग वगैरह जो लोग खाते हैं उनमें भी हो सकता है, दूसरी चीजें, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑल्सो मैटर्स, अगर पुअर न्यूट्रिशन है तब भी दैट विल प्रेसिपिटेट एपिलेप्सी इन टाइम टू कम। तो ये सब जो है दैट इज वेरी सीरियस इशू। ये हम कम्युनिटी में जब तक जाएंगे नहीं, वहां का पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे, पानी कहां का पी रहा है मरीज हमारा। एक ही परिवार में 6 लोग हैं, 5 को एपिलेप्सी क्यों है? इज इट जेनेटिक और समथिंग टू डू विथ समथिंग एल्स? और जब आप जाते हैं तब समझ में आता है कि नहीं, इशू ये है, क्योंकि न्यूरोसिस सर्कोसिस अगर टाइमली डिटेक्ट हो गया तो उसका इलाज के बाद ठीक भी हो जाता है। अगर आप कभी सीटी स्कैन करेंगे या एक्सरे करेंगे तो लगता है पूरे ब्रेन में होल दिखता है, ठीक है, पूरे शरीर में आ जाएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे डिसअपियर ठीक हो जाता है। तो न्यूरोसिस सर्कोसिस की वजह से एपिलेप्सी है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। तो ये जो एक्सेस इश्यूज है, रिसर्च इंक्लूड्स लाइफ एक्सपीरियंस। जब तक आप जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, यू विल नेवर लर्न एक्चुअली। हम चाहते हैं हमेशा साइकोलॉजी का एप्लीकेशन पार्ट को जोड़ दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, नहीं, दिस इज अप्लाइड सब्जेक्ट। हमको लगता है कि टाइम ज्यादा लेने में 2 मिनट में खत्म करेंगे। साइकोथेरेपी रिसर्च स्टडीज हाउ थेरेपी वर्क्स। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई अगर बोलता है बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं, तो आप समझ लीजिए अपने आप को आपने लिमिट कर लिया। हमेशा एक चीज सीखिए कि एडजंक्ट के साथ ही आप सरवाइव करेंगे। हम तो अपने जीवन में कभी भी हमको नहीं लगा कि हम एक थेरेपी से किसी को ठीक कर पाए, ठीक है। अगर आपने वोल्बर की बुक देखा होगा साइकोथेरेपी का, ठीक है, तो सबसे पहला उसमें सपोर्टिव साइकोथेरेपी आता है, ठीक है, उसके बाद रीएजुकेटिव और फिर रिकंस्ट्रक्टिव। रिकंस्ट्रक्टिव में जितने जो टिपिकल साइको एनालिसिस वगैरह है सब आता है। रीएजुकेटिव में बिहेवियरल अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की थेरेपीज आती हैं। लेकिन जो पहला है सपोर्टिव, काउंसलिंग, गाइडेंस, परसुएंस, ये क्या बहुत बेसिक हम बतला रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ दोस थिंग्स यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट। हमने शुरुआत में बोला ना, आपका थेरेप्यूटिक अलायंस ठीक नहीं है, आपका बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है, आप उसको सपोर्ट सिस्टम के रूप में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसको नहीं लगता कि यू आर द कॉम्पिटेंट पर्सन टू हेल्प दैट पर्सन, ही विल नेवर गो फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प। आई टेल यू, आप सीबीटी ट्राई करिए, साइको एनालिसिस करिए, ठीक है, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि उसका आपके साथ थेरेप्यूटिक अलायंस ही नहीं बन पाया। तो ये जो थेरेपी जो है, हमेशा याद रखिएगा, holistic approach, eclectic approach of psychotherapy is the best method in research also. Who benefits and how to train therapist effectively? तो आजकल एक साइकोथेरेपी रिसर्च पर बहुत वर्क हो रहा है, इसके ट्रेनिंग पर भी चल रहा कि व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू लर्न साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का नाम बहुत यूज एब्यूज सब होता है, जैसे काउंसलिंग, साइकोथेरेपी में क्या डिफरेंस है, कहां तक हमको बाउंड्रीज होनी चाहिए, ये सब हमेशा इश्यूज आते हैं। बस एक ही प्लस पॉइंट होता है, जब स्कूल मेंटल हेल्थ में हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल इश्यूज। गार्जियन छिटक जाते हैं अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करिए, आज जरूरत भी नहीं है। बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है किसी को, सबको हो सकता है, हमारे आप में भी हो सकता है, ठीक है। देन दे आर एबल टू आइडेंटिफाई बेटर। तो जो स्टडीज हाउ थेरेपी वर्क्स, हु बेनिफिट्स एंड हाउ टू ट्रेन थेरेपिस्ट इफेक्टिवली, दैट इज आल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर कंडक्टिंग रिसर्च इन टर्म्स ऑफ नोइंग व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच कैन बी अप्लाइड इन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ थेरेपी। जैसे गेस्टाल्ट थेरेपी, एक जमाना था कि आया और खत्म हो गया, आजकल बहुत सारे नए रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। साइको एनालिसिस की प्रैक्टिस दिन के दिन कम होती जा रही है, ठीक है, लेकिन बिहेवियरल अप्रोच, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस, दैट इज गियरिंग अप,
इवन नाउ. तो बीच बीच में फेज आता है, लेकिन जब ज्वाइंटली करते हैं मिला करके, देन यू विल गेट बेटर रिजल्ट. लॉन्ग टर्म स्टडीज कोलैबोरेटिव, एक दूसरा है कि रिसर्च मेथड, जैसे रिसर्च स्कॉलर्स कितना लंबा रिसर्च करेंगे, बहुत लंबा आपको नहीं करना है. लेकिन अगर हमको कहीं से फाइनेंस हो जाता है, फंडिंग एजेंसी से मिलता है, तो हमको लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन पर सोचना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च एक चीज होती है ना, वो तभी आप अप्लाई होगा आपके ऊपर जब आप कोलैबोरेशन से कोई चीज नहीं लेकर के आए. ठीक है, लॉन्ग टर्म में कहीं पर 4 साल 5 साल 6 साल जैसे नहीं बोलते हैं कि चल रहा था प्रोजेक्ट, तो दैट गिव्स अस जेन्युइनली गुड रिजल्ट. रियल टाइम ट्रैकिंग, बहुत से कोहॉर्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं, आप लोगों को पता है. अभी ब्रिटिश उसका आया था कि 170 साल से एक रिसर्च कंडक्ट किया जा रहा है साइकोलॉजी का इंग्लैंड में. ठीक है, एजिंग पर क्या खाते हैं, कैसे होता है ना, तो सब चीजों को देखना है. मशीन लर्निंग एंड फ्लेक्सिबल ट्रायल्स, ये सब चलता रहता है. एथिक्स इज इंपॉर्टेंट, हमेशा एडहियर टू द एथिक्स. आजकल एथिकल कमिटीज भी हर इंस्टीट्यूशंस में आ गया है, और एथिक्स इज फंडामेंटल पॉइंट, है ना. वी शुड नेवर डेविएट एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, एज ए क्लिनिशियन. हमेशा जो भी हमारे एथिक्स उसको एडहेयर करें. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको वो नहीं. इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल थिंग. बस हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क मी. थैंक यू वेरी मच. सर, take small samples, I'm just suggesting. But so far as selection of small sample collection, there will be question of precision, and there will be question of minimization of error. So how can you justify? sir, there are 3 methods actually what we go in mental health. One is routine, but mostly we go for the case studies, because when you are dealing with a patient, that is why I was referring in the area of mental health, survey studies, that is different, that we conduct in the community. But when it comes to the treatment, each and every individual is different. Even if you go for any medical journal, right, what all cases we come across, bypass surgery or anything, they will give you the complete detail of that individual or that client, because only then precision will be there. Otherwise, there are some generalized methods we always use, but for a given client, that is why I said eclectic approach, because what suits the best, that is to be applied. We cannot experiment it with every individual. Same therapy, suppose there are n number of people sitting in the front row. Each one of you are having OCD, diagnosed, final. But we are not going to go for the same treatment for everyone. It is impossible to do it, because each one of us are different. And for that reason, sir, generally we prefer in such type of field, medical field, mental health field, that okay, for survey that is all right. Attitude toward mental illness, stigma, right, prevalence even, that is all right. We give some questionnaire, we go for interview, like National Mental Health Survey was carried out in 2016, right? Again, that is being conducted. There we can do it. Again, when it comes to the actual intervention, I mean treatment, then individual becomes the focus. That is the only thing, sir. Nothing. Yes, sir. Thank you very much, sir. Yes, sir. Please. जी. उसके घर में एक्सीडेंटल घटना घट गई. घटने के बाद वो रिसर्चर मेंटली परेशान है. इसको शांत करने के लिए मैं बहुत सारा अपने तरफ से उसको खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है. सर, तो ऐसा कुछ उपाय ताकि उसको मेंटल चीज से चेंज कर पाए. देखिए, सबसे पहली बात तो है, अगर आपके मित्र हैं तो आप उनके साथ बात करें. ठीक है, और वाकई में अगर क्या घटना हुई, दैट आई डोंट नो, वो खुद हाँ, किसी को तो दैट इज बिग ट्रॉमा ना. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं हम बोलेंगे इसको अभी, क्योंकि आई डोंट नो द हिस्ट्री. लेकिन जब भी कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंस होता है परिवार में, तो एक फेज आता है बेरीवमेंट का. ठीक है, और ग्रीफ रिएक्शन. तो किसी में ग्रीफ रिएक्शन लंबे समय तक रहता है. बेरीवमेंट प्रोसेस एक थेराप्यूटिक प्रोसेस है. जब किसी के घर में कुछ डेथ होता है तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, फ्यूनरल होता है, घर में लोग उनके बारे में बातचीत करते हैं. दैट इज थेराप्यूटिक हीलिंग.
जो हमारे समाज में शुरू से था, हर समाज में, ठीक है। तो अब सवाल ये कि इनसे क्या बात होती है, उनके साथ क्या रिश्ता था, इनसे छोटे थे कि बड़े थे, है ना, हो सकता है डिप्रेशन हो गया है ना, हो सकता है और कुछ मन में कंफ्यूजन चल रहा हो। तो अगर वो हैं तो उनसे बोलिए कि हम लोगों से कभी मिले, विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम, या हेल्पलाइन से भी बात हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन आई एम गुड दैट यू आर पॉइंटिंग इट आउट। थैंक यू, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग लिटिल मोर टाइम, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब हम सर शुरू हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, है ना, हमको अभी जाना भी एयरपोर्ट। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल, इफ यू वांट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। सॉरी, हाँ नहीं Thank सर, हम you समझ very रहे much, थे, sir, लंच के पहले ही for आपने that कर truly enlightening and thought-provoking address. Your insights have not only broadened our understanding, but have also sparked meaningful reflection among all of us present here today. We deeply appreciate the time, depth, and passion you brought to this session. Please join me once again in giving our renowned speaker a warm round of applause. As we now move to the next part of our program, it is my pleasure to invite our rapporteur, Ms. Kumari Ruby, who will capture the essence of today's discussion by highlighting the major ideas and summarizing the significant learnings with clarity. Good afternoon, everyone. I am Kumari Ruby, the rapporteur for this workshop. Now, I would like to present a brief summary of this session. In this session, the speaker, Dr. Amol Ranjan Singh Sir, Director of RINPAS, spoke on the topic research trend in the field of mental health. Sir highlighted several important points, including the rise of digital mental health such as online counseling, the growing focus on precision psychiatry, the development of new diagnostic frameworks, the expansion of global mental health initiatives, the increasing use of artificial intelligence in assessment, prediction, and treatment planning, the importance of youth-focused prevention programs, the strengthening of psychotherapeutic research. Overall, the session emphasized the importance of ongoing research in the field of mental health and demonstrated how evidence-based practices can enhance our understanding and management of psychological concern. Thank you, sir, for this informative and insightful session. Thank you so much, Ms. Kumari Ruby, from briefing on the lecture. Now we will have lunch break, जिसका arrangement academic staff building पे गया है. I will request you all to visit there and please be back here after the lunch break. Thank you so much.